Hello everyone, thank you for watching Together with Dhanu and welcome back to yet another video. Well, if you've come to this channel for the very first time and you have met me for the very first time, hello, my name is Dhanu and it would mean a lot if you could take a moment and subscribe to my channel. And with that being said, let's get right into the video. Okay guys, so in today's video I will share with you all my event head experience, which I have been keeping a secret from you all since such a long time, but I did reveal this particular fact in my previous video that I will be talking about this in this particular video. So I hope you are excited as much as I am. So firstly मैं आपको ये बता देती हूँ that how did I became an event head, because I think that would be the first and foremost question which would have come in your mind. So what happened was that last year in December, I filled the form, the NGO called THF, the Himalayan Foundation, and I filled in the forms. I had an interview which I had to go through, and then I cleared that. I became the member. You know, we were divided into certain groups there, and a lot of webinars and other forms used to come there. So I just spotted this form wherein they asked if anyone was interested in filling the form of event head. So I finally ended up deciding that okay, let's fill in this, because I always had this curiosity कि एक इवेंट हेड क्या होता है, कैसे काम करता है, हाउ एन इवेंट इज ऑर्गेनाइज, व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन एवरीथिंग. एंड अब बिकॉज मैंने वो एक इवेंट हेड कर लिया है ना, आई किड यू नॉट गाइज, आई हैव दिस मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर मुझे कोई वेडिंग या एक एंगेजमेंट भी ऑर्गेनाइज करनी है ना, आई थिंक आई कैन डू दैट. So I filled in that form, and I kid you not guys, it took me around 30 minutes to fill in that form because it was so lengthy and everywhere it was written explain, explain, explain. So you know, when the word explain comes, you really need to elaborate things in. So then I had my interview. It went pretty well. उसके बाद I received a call from the interviewer जिन्होंने मेरा interview लिया था, asking about the availability of mine. So they told me कि event was supposed to happen in April, but the entire month of March would be required to do the preparations of that particular event. And I was लिटरली स्टक इन अ डिलेमा बिकॉज मार्च में मेरे एग्जाम्स भी थे, मैं अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रही थी. मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था दैट आई वॉज ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स. सो आई वॉजंट श्योर कि करना चाहिए कि नहीं. तो बहुत सोच विचार करने के बाद आई फाइनली एंडेड अप डिसाइडिंग कि आई विल डू इट, एंड मैंने किया. I got shortlisted and became the event head. So before proceeding further, मैं अब आपको ये बता देती हूँ कि इवेंट क्या था और किस बारे में था और मैंने क्या मतलब किस चीज़ में मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया. तो बेसिकली जो इवेंट का नाम था किडो किड्स ओलंपिक. बेसिकली ये जितने भी हमारे ट्राई सिटी में ऑर्फनेजेस इन स्लम स्कूल्स हैं उनके किड्स के लिए करवाया गया था. इट वॉज बेसिकली अ 1 डे स्पोर्ट्स एक्स्ट्रावेगेंजा जो कि ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करा रही थी बच्चों के लिए, बिकॉज नॉर्मली वी हैव स्पोर्ट्स इन स्कूल्स राइट, वी बीइंग द प्रिविलेज्ड वंस, बट those who are not that much privileged, उनको ये चांसेस नहीं मिलते. सो वी थॉट ओके लेट्स गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी. दिस इवेंट काइंड ऑफ एक्साइटेड मी बिकॉज इट वॉज यू वर अबाउट टू डू इट फॉर द किड्स. तो फिर उसके बाद से जर्नी शुरू होती है. वी हैड आवर फर्स्ट ऑफलाइन मीटिंग एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब हमारी फर्स्ट ऑफलाइन मीटिंग थी, आई वॉज सो स्पेक्टिकल एंड सो स्कैर्ड कि वेदर आई शुड बी गोइंग और नॉट, बिकॉज आई डोंट नो एनी वन देयर, जेन्युइन है नहीं है. आई हैड these many questions going in my head. I spotted many other people there, and then later on I realized कि वो भी मेरे साथ मेरे team members यानी कि वो भी event heads थे उस particular event के लिए. So we had a little get together, we get to know each other, so many new faces. It was like आप interview देते हो, you get selected in a job and then you have to interact with strangers. It was exactly the same feeling. हमेशा से मुझे सब extrovert बोलते होते हैं, but when I went there I legit felt like that I was an introvert. I don't know what happened. I had to left early, तो मैं pictures नहीं खींच पाई. But I think cake cutting भी हुई थी जो मैं taste नहीं कर पाई. उसके बाद से we used to have daily, I mean when I say daily it means daily without skipping any day, be it Saturday, be it Sunday. We used to have daily meetings. But बीच में हमारा offline काम भी चलता रहा because at that time काफ़ी चीज़ें हैं वो normalize
होने लग गई थी. एंड ऑल्सो गाइज, वैसे तो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देख ही लिया होगा, बट स्टिल आई वुड वॉन्ट टू से यू प्लीज स्टे एट होम एंड टेक एज मच प्रिकॉशंस एज यू कैन. एंड दिस वीडियो वॉज शॉर्ट व्हेन थिंग्स वर क्वाइट लॉट बेटर. सो फर्स्ट ऑफलाइन मीट के बाद हमारी एक और ऑफलाइन मीटिंग हुई थी, जो कि हुई थी सेक्टर 36 में. एंड देयर वी गेट टू नो ईच अदर बेटर एंड इवन मोर. ऑल्सो एज आई मैंशन कि ये इवेंट बेसिकली ट्राई सिटी के सारे ऑर्फनेजेस एंड स्लम स्कूल्स के लिए था. तो इसमें जो है विजिट्स भी इन्वॉल्व थी, ऑफलाइन विजिट्स. वी हैड टू विजिट दी पर्टिकुलर स्कूल, इंटरैक्ट विद किड्स देयर एंड मेक देम फ्रेंडली एंड फेमिलियर अबाउट व्हाट द इवेंट इज गोइंग टू बी. तो यस, अब चलते हैं और देखते हैं. फर्स्ट विजिट जो मेरी ऑफलाइन थी, दैट वाज इन YTTS सेक्टर 25 चंडीगढ़. और बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई गेट टू सी सो मेनी किड्स देयर एंड सो वेरी talented. Some were doing drawing, some were doing dancing, some were singing, some were doing acting. So I had a fabulous experience and the kids were very warm and very welcoming. So interacting with kids was really fun. And uske baad all the event heads and our team members, we just went to McD, had a little bit of food because we were feeling tired. We thought okay, we need to chill and relax. We had some golgappas and all. Of course, agar aap mere sath Instagram pe connected ho, you would have watched the behind scenes जिसमें I was eating golgappa. Yeah, that was pretty much about the first visit. उसके बाद मेरी second visit हुई MDBA3B1, if I'm pronouncing it right. I don't know the full form. तो इट्स इन मोहाली समवेयर. एंड यहाँ पर भी बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ. द किड्स वर अगैन वेरी वार्म, वेरी वेलकमिंग, एंड आई इवन गॉट अ चांस टू डांस विद दीज किड्स इन बीट्स. तो थोड़ा बहुत कोशिश की, as much I could interact, as much as I could talk to them, make them feel lighter and happier. Say hi guys. Hi guys. पावी And I kid you not guys, the experience was pretty good. और जाते जाते बहुत प्यार से उन सबने बाय भी बोला. ओके, सो जो थर्ड विजिट मैंने करी थी वो सेक्टर 1 चंडीगढ़ करतार आसरा. नाउ दिस प्लेस इज़ वेरी क्लोज टू मी बिकॉज आई वॉज एक्चुअली टोटली हैंडलिंग एंड वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द हेड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. सो इट्स वेरी वेरी क्लोज टू मी. एंड इवन जो विजिट थी उसको लीड किया जाता था, तो ये वाली विजिट मेरे को लीड करनी थी. Hello everyone. So today is finally the day when I'll be going to an orphanage. I'm really looking forward towards the day. Let's see क्या क्या होता है. Hi, hello. Though the number of kids were very less, but quantity doesn't matter. They were very talented, they were very welcoming, and they interacted so well. And also this is an orphanage, so when we were interacting with kids, even old people were coming up when we were giving the opportunity to kids to dance and showcase what they know. Even I remember there was a lady who said that I also want to dance. That lady and a few of my other team members went and we literally danced together. I tried clicking pictures with them. So yeah, that was really really amazing, and I have vlogged also a bit of pieces. लीफ चेंज कोई भी चलेगा. बच्चा पार्टी से हाय. मतलब अलग अलग शेड. हाय. ये देखो बड़े लोग हाय कह रहे. हेलो. और जोर से ना किडो बोलना है. किडो. एक और बार. एक और बार. एक और बार. देन अगली बार मैं मार्केटिंग विजिट के लिए गई थी, जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत काम असाइन किया गया था. सो या, वॉच दैट आउट. हेलो एवरीवन. सो आज हम जाने वाले हैं मार्केटिंग की विजिट्स के लिए. सो आई विल शो यू मेरे कुछ इवेंट हेड्स. तो सुबह से बस हम उसी काम पे लगे हुए हैं अब जाके. तो बस सुबह से हम उसी काम के लिए लगे हुए हैं. एंड आई डिडंट रियलाइज़ कि मैंने उसका इंट्रो ही नहीं शूट किया था. सो आई एम डूइंग दैट. एंड अब बहुत बिकॉज गर्मी हो रही है चंडीगढ़ में, तो इट्स टाइम कि हम थोड़ा सा कुछ पी लें. एकदम काम तो बहुत किया है आज, एंड होपिंग कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले आज हमें. सो या, लेट्स गो, लेट्स रिफ्रेश आवरसेल्व्स, रिफ्रेश आवर एनर्जी. एंड बहुत सारा काम पड़ा है, लेट्स डू इट. उसके बाद एज आई
मेंशन कि ये जो इवेंट था वो एक स्पोर्ट्स इवेंट था, तो हमने वेन्यू डिसाइड किया हुआ था सेक्टर 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ का। सो फाइनली हियर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहीं पे होगा हमारा फाइनल इवेंट। लेट्स गो, लेट्स मीट आवर टीममेट्स। So we just went there to look at everything and we did shot a video also for the social media. वो भी बहुत फन वीडियो हमने शूट की थी। आई थिंक वी वेंट टू सेक्टर 17, हैड लिटिल बिट एंड देन वी केम बैक। उसके अगले दिन वी अगेन हैड अ ऑफलाइन मीटिंग। देन वहाँ जाके हमें पता चला कि हमारी पिनिंग होनी थी, मतलब कि हमें बैच मिलना था इवेंट हेड का। ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई बैच एंड आई सेड कि पिनिंग हुई थी। उसके बाद ना एक न्यूज़ सुनने को मिली विच वॉज कि हमारा वेन्यू जो है किसी रीजंस के वजह से हमें शिफ्ट करना पड़ा। सो वेन्यू वॉज शिफ्टेड फ्रॉम चंडीगढ़ सेक्टर 7 कॉम्प्लेक्स टू पंचकुला। ताऊ देवी लाल स्टेडियम करके है, वहाँ पे हमारा वेन्यू शिफ्ट हो गया था। वी हैड अ विजिट देयर। हमने फिर से वेन्यू को देखा एंड वी डिड सम लिटिल बिट ऑफ वर्क, थोड़ा आर्ट क्राफ्ट का काम था एंड डिसाइडेड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू नो फिगर्ड आउट कि कैसे करना है, कौन सी चीज़ें कहाँ होंगी, सारा कुछ डिसाइड वगैरह किया। हेलो गाइस, सो इट्स 8 PM राइट नाउ एंड हम सारे अभी भी काम कर रहे हैं। लाइक आई हैव सो मच ऑफ डेकोरेशन वर्क हियर एंड उधर बलून्स का काम चल रहा है। दे आर डूइंग द सर्टिफिकेशन थिंग्स, सो मच ऑफ वर्क लगे हुए हैं। वी आर एक्साइटेड, लेट्स गो। आज फाइनली आता है नेक्स्ट डे जो कि होता है ईव का डे। सो या वॉच दैट आउट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज 4:30 उठ गई थी एंड अभी 6:30 हो रहे हैं एंड या फाइनली इज़ द डे जिसके लिए आई वॉज डूइंग द इवेंट हेड थिंग। कैन यू सी द बैच? Yeah, it feels great. Sorry, I'm not boasting off, it's just that I'm very happy. So here I am at Sector 1 करतार आसरा and अब हम बच्चों को लेके जाएंगे वेन्यू पे। Really excited. And look who's with me. Hello. चलो चलते हैं and मिलते हैं आपको। Bye. And now kiddo, 1 2 3 1 2 3 और जोर से और जोर से इवेंट वाले दिन जितना काम होता है वो आई थिंक पूरे 1 महीने में नहीं किया। आई किड यू नॉट गाइज, आई वॉज सो फ्रिकिंग टायर्ड आफ्टर दैट इवेंट एंडेड। मतलब मुझे लगता है मैं 2 दिन सोई होंगी बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। आई मीन it drained all energy of mine, but in the end it was amazing. बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हुई। लास्ट में बहुत ही अच्छा बैंड का कंसर्ट सा हुआ, दे सैंग सॉन्ग्स एंड बहुत इन्जॉय किया हमने। दैट वाज रियली अमेजिंग। हमारे ना आई थिंक सबके जो भी इवेंट पे था लिटरली सबके पैर दर्द हो रहे थे, बट स्टिल वी वर यू नो जस्ट लिटिल बिट ऑफ डांसिंग एंड ग्रूविंग ऑन दोज बीट्स। बस एक चीज़ का दुख था कि हमारा इवेंट था बट हमारी एक पूरी टीम की ना कोई फोटो ही नहीं हो पाई। आई रिमेंबर वी जस्ट क्लिक्ड 1 पिक्चर लास्ट में एज अ सरप्राइज दिया गया था। वी हैड अ केक फॉर किडो टीम सीजन 11 एंड दैट वाज सो फ्रिकिंग डेलिशियस, आई जस्ट कांट टेल यू। उसके बाद वी वर जस्ट यू नो ऑल टायर्ड ऑन दोज चेयर्स एंड वी नीड टू रेस्ट, वी नीड टू स्लीप। बट या यू नो जब एक चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत करो एंड वो चीज़ सक्सेसफुली हो जाए, इट फील्स ग्रेट, इट फील्स ऑसम। सेम विद मी, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इवेंट हो गया। अ लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्नड, यू नो हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, एक टीम की तरह कैसे काम किया जाता है। बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे जो आई थिंक मैं बयां भी नहीं कर पाऊंगी इस वीडियो में। आई थिंक हर चीज़ जो आपके सामने आती है वो बहुत कुछ सिखा के जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले। सो या गाइज, दैट वॉज माई इवेंट हेड का एक्सपीरियंस। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस or you wanna ask me something. If not, then you can let me know what do you feel about the video.
Did you enjoy watching it? Just do drop a comment, whatever you feel like. That would bring a big smile on my face. And if you haven't subscribed to the channel yet, please consider subscribing, because I come up with a lot of amazing videos for you all. And also a quick announcement which I wanted to make is कि for the month of entire June I am thinking of starting a series called #Dhanu Reviews, जो कि मैं Wednesdays, alternate Wednesdays को upload किया करूँगी in the month of entire June. And if this series do well, I'll think of continuing it for the upcoming months as well. Now you must be thinking कि review कौन सा review, किस तरह का review. So I'll be reviewing some web series I watch, maybe some books I read, short videos होंगी. अब technically क्या होगा कि अब जैसे आज संडे को वीडियो आई है, अब नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को वीडियो आएगी, उसके नेक्स्ट वीक संडे, देन वेडनेसडे, देन संडे, देन वेडनेसडे, ऐसे करके वीडियोस आएंगी चैनल पे. सो इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी अपडेट्स. एंड ऑल्सो it would mean so much if you could just take a moment and share also this video and ask your friends to subscribe, because I really want to reach to 1K super soon. And I think with you guys as my family, I would definitely achieve it super soon. So tab tak ke liye stay together, grow together, and that too together with Dhanu. Bye bye guys, I'll catch you in next video. Bye.